بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مجھے اپنے باپ کے بارے میں کچھ علم نہیں تھا۔ ابھی چھوٹی سی تھی کہ امی بھی بڑی دنیا میں تنہا چھوڑ کر چل بسی۔ شاید کہ وہ میرا بوجھ بہت زیادہ دیر تک نہ اٹھا سکتی تھی، اس لیے ابتدائی دنوں میں ہی میں دنیا کی ٹھوکروں میں آ گئی۔ ایسے بچوں کے ساتھ زمانہ جو سلوک کرتا ہے وہی میرے ساتھ ہونے لگا۔ کبھی ایک رشتہ دار اور کبھی دوسرا گھر پر پرورش پانے لگی۔ ان کے بھرے گھر میں ایک یتیم بچی کی جگہ نہیں تھی۔ کوئی بھی میری مستقل ذمہ داری قبول کرنے کو تیار نہ تھا۔ ماں کی ایک رشتہ دار کو ترس آ گیا۔ صباحت خالہ مجھے اپنے گھر لے آئی۔ اگرچہ سگے ماموں حالائے بھی موجود نہ تھی، لیکن کسی نزدیک کی رشتہ دار نے مجھے گود نہ لیا۔ صباحت خالہ امین نہیں تھی، بس سلائی کر کے میری پرورش اچھے طریقے سے کرنے لگی۔ یوں وقت گزرتا چلا گیا اور میں 16 برس کی ہو گئی۔ صباحت خالہ خود قسم پرسی کی زندگی جی رہی تھی، لہٰذا ان کا سماج میں خاصا مقام نہ تھا۔ میرے لیے کسی اچھے گھر سے رشتے کہاں سے آتے؟ وہ شریف سیدھی سادی حلیم الطبع خاتون تھی۔ محلے پڑوس کے لوگ جہاں ان کی عزت کرتے تھے، وہاں روپیہ پیسہ نہ ہونے کے سبب انہیں کوئی اہمیت نہیں دیتا تھا، حتیٰ کہ تقریبات میں صرف اس وجہ سے کیا جاتا تھا کہ کچھ کاموں میں ہاتھ بٹا دے گے۔ مجھ میں دیگر خوبیاں خالہ کی تربیت سے آئی تھی، لیکن ایک خوبی پروردگار نے اپنی مہربانی سے عطا کی تھی کہ میری شکل و صورت بہت اچھی بنائی۔ ذرا بڑی ہوئی تو میری خوبصورتی کا تذکرہ ہونے لگے۔ شکل اچھی ہو، لڑکی لاوارث ہو تو زمانے کی نظروں میں بھٹکنے لگتی ہے۔ میں ابھی اوباش نوجوانوں کی نگاہوں کی زد میں آ گئی۔ وہ چیلوں اور کووں کے مانند میرے گرد منڈلانے لگے۔ صباحت خالہ نے اس محلے میں عمر گزاری تھی۔ بیوی کے بعد شرافت سے محنت مزدوری میں جیون بتا دیا تھا، لہٰذا کسی کی ہمت نہ پڑتی تھی مجھ پر انگلیاں اٹھانے کی۔ خالہ نے مجھے کوئی کڑی نگرانی میں پالا تھا۔ اب میں 9 برس کی تھی۔ میرا اکیلے گھر سے نکلنا بند کر دیا، جہاں خود جاتی ساتھ لے جاتی۔ لینے نکلتی تو مکان کے بیرونی دروازے کو باہر سے تالا لگا دیتی۔ بچپن میں خود سکول چھوڑنے اور لینے جاتی تھی۔ مجھے زمانے کی سمجھ نہیں آتی کہ عمر ہی کتنی تھی۔ خالہ نے خود تکلیف نہ سہی مگر مجھے استباد زمانے سے بچائے رکھا۔ گھر کی کھڑکیوں سے جھانکنے بھی نہ دیتی تھی۔ میری کوئی سہیلی نہ تھی، وہ خود ہی میری ماں تھی اور خود سہیلی تھی۔ ان پڑھ ہونے کے باوجود وہ اتنی باشعور تھی کہ فارغ وقت میں مجھے وقت دیتی تاکہ میری روح کو خوش اور سکون لمحہ میسر ہو۔ ہر عمر کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں۔ شک 8ویں کے بعد گھر بیٹھ گئی تھی، لیکن اب دنیا دیکھنا چاہتی تھی۔ گھر کی کوئی کھڑکی کھلی ہوتی تو چھت سے جھانک کر محلے کا نظارہ کرنے کی خواہش دل میں آنے لگی۔ ایک روز خالہ سو رہی تھی۔ چھت پر چڑھ کر میں گلی کا نظارہ کر رہی تھی کہ ایک اوباش لڑکے کی مجھ پر نگاہ اٹھ گئی۔ بس پھر کیا تھا، اس نے تو گلی میں جیسے ڈیرا جما لیا۔ جب خالق کسی کام سے نکلتی ہے وہ ہمارے گھر کے نزدیک موجود ہوتا۔ اس لڑکے کا نام کبیر تھا۔ وہ چھٹا ہوا بدماش تھا۔ حالانکہ چھٹی اس نے خطرے کا الارم دے دیا اور وہ پریشان رہنے لگی۔ اب ان کو احساس ہو گیا کہ یتیم بچی کو پالنا اتنا مشکل نہیں ہوتا جتنا اس کو اپنے گھر کا کرنا۔ یہ کام بیوہ خالہ کے لیے دشوار تھا۔ محلے کے مختلف گھروں میں جا کر انہوں نے اپنا مسئلہ بیان کیا کہ ان کی بیٹی کے لیے رشتہ ڈھونڈا جائے کہ وہ چین کی نیند سو سکے۔ آخر ایک پڑوسن نے مسئلہ حل کیا۔ اس نے خالہ کو تسلی دی کہ ان کی بھانجی لاہور میں رہتی ہے اور وہ رشتے کرنے والی ایک عورت کو جانتی ہے۔ فون پر کچھ دن بھانجی سے رابطہ کرنے کے بعد
रोज ने खुशखबरी दी कि एक अच्छे घराने का रिश्ता मिल गया है, वो जल्द ही लड़की को देखने आ रहे हैं। हफ्ते बाद पड़ोसन ने खुशखबरी दी कि कल वो लोग लाहौर से मेरे यहाँ पहुंचेंगे। हाला सबाहत ने कहा, बहन तुम ही इन लोगों को ठहराना और मेहमानदारी का इंतजाम करना। रिश्ते का मामला है, मेरे घर तो बिठाने का मुनासिब इंतजाम भी नहीं है और ना अच्छे बर्तन हैं। पड़ोसन ने कहा, तुम फिक्र ना करो सबाहत, तुम्हारी बेटी मेरी बेटी है, मैं ही इन लोगों को ठहराऊंगी और मैं ही इनकी हाथी तवाजा करूंगी। तुम्हारे घर बस वो बच्ची को एक नजर देखने आएंगे। खबर मिली कि लाहौर वाले मेहमान आ पहुंचे हैं। हाला ने मुझे पहनने को जो सबसे उम्दा जोड़ा जो इनकी नजर में था वो निकाल दिया और घर की खूब सफाई सुथराई की। बस वो यही एहतमाम कर सकती थी। लड़का पड़ोस में बैठा था और इसकी माँ हमारे घर मुझे देखने आई। उसने पहली नजर में पसंद कर लिया। लाखों में एक थी और यतीमी के सिवा मुझ में कोई ऐब न था। मोहल्ले वाले डर रहे थे कि अनजान लोगों में रिश्ता हो गया। हाला का दिल भी डरता था, मगर पड़ोसन ने कहा, ये अच्छे और शरीफ लोग हैं, घबराओ नहीं। वालिदैन तो सिर्फ भर देखते हैं, किस्मत नहीं बना सकते। करो तुम्हारी बेटी के नसीब अच्छे हो। वो शादी की तारीख रखकर चले गए। रुखसती के लिए 3 माह की मोहलत मांगी थी। उस दौरान पड़ोसन की मदद से मेरे जहेज के चंद जोड़े और कुछ बर्तन वगैरह खरीद लिए गए। हालांकि इन लोगों ने कहा था कि हमको जहेज की कतई जरूरत नहीं है, अल्लाह का दिया सब कुछ है। शादी वाले रोज मोहल्ले में चंद खवातीन आई, मगर सभी उस शादी पर मशकूक थी कि अनजाने लोगों में दूर शहर से रिश्ता आया था। काफी अंदेशे थे, मगर हाला से किसी ने कुछ न कहा। वो सबाहत बीबी की हिम्मत के मुतारिफ थे, जिन्होंने अजाब सहकर मुझे पाला पोसा था। कोई रिश्तेदार एतराज नहीं कर सकता था, जबकि जरूरत के दिनों में वो ताल्लुक रहते थे। शादी के घर में हो का आलिम था। जो औरतें आई थी वो भी खामोश थी। जो दूल्हा घर में आया तो देखने वालों पर बिजली गिर गई। ये शख्स किसी तौर से मेरे जोड़ का ना था। उम्र भी 40 वर्ष से ऊपर थी। पुख्ता सन था, जबकि मैं अभी 25 थी। ताहम तमाम लड़कियों से ज्यादा समझदार थी। निकाह और गवाहों के इंतजामात भी पड़ोसियों ने किए थे। कुछ मोहल्लेदार मेरी शादी में आए, लेकिन हर चेहरा सोच में डूबा था। उन्हें लगता था कि बेचारी बेवा और इसके यतीम नाबालिग बच्ची के साथ शादी के नाम पर जरूर कोई फ्रॉड है, लेकिन एलान की जुर्रत किसी में ना थी। सब कहते, ठीक है, अगर शादी के ऐन वक्त मामला गड़बड़ हो गया तो तमाम जिम्मेदारी उन पर पड़ जाएगी। फिर कौन कब मुझे डोली पर चढ़ाएगा। सभी ने यही सोचा कि अल्लाह मालिक है, जो हो रहा है होने दो। शाम को निकाह हुआ और रात 9 बजे बारात रुखसत हो गई। लड़के का घर लाहौर के नजदीक किसी नाहिक गांव में था। उन्होंने वलीमे की दावत दी, मगर लड़की वालों की तरफ से कोई नहीं गया। शादी के बाद मुश्ताक ने कई बार हाला से बात कराए फोन पड़ोसन के घर था। वो हाला को बुलवा लेती और मैं बात करती थी। हाला पूछती, क्या हाल है, तुम खुश हो? और मैं जवाब देती कि सब ठीक है, आप फिक्रमंद ना हो। यूं तो सब ठीक था, लेकिन मुश्ताक की सूरत, शक्ल और उम्र से ये रिश्ता मेरे जोड़ का न था। मैंने सोचा, शक्ल का क्या करना, तहफ़्फ़ुज़ और मजबूत पनाहगाह तो है। मैं तायत गुजार थी। हाला ने तरबियत ही ऐसी दी थी, हर तरह के हालात से समझौता करने की सलाहियत मौजूद थी। लेकिन घर का माहौल घर जैसा न था, बल्कि अजीब तरह का माहौल था। पास पड़ोस से कोई आता न था। किसी औरत ने दुल्हन देखने को इस घर में कदम न रखा। सर मुश्ताक के दोस्त आए थे, जिनको बैठक में बिठा देते थे। यकीनन के वो कारोबारी दोस्त थे कि घर में खुशहाली थी। ससुराल से कोई न था, ननंद देवर, ऐसा कोई रिश्ता जाहिर ना हुआ, जैसे कि मुश्ताक का कोई ना हो।
और ये दुनिया में अकेले हो। जो औरत माँ बनकर रिश्ता लेने साथ आई थी वो अब भी घर में मौजूद थी, मगर वो खामोश तबाह उस कदर के जैसे गूंगी हो, चुपचाप घर का काम काज करती रहती और मुझसे कम ही गुफ्तगू करती। जल्द ही इस फजा में दम घुटना महसूस होने लगा। मैंने औरत से नजदीक होने की कोशिश की, मगर इसने फासला रखा। वो मुझसे दूर रहने को बेहतरी समझती थी। ये वही औरत थी जो पहले मुश्ताक की माँ बनकर आई थी। फिर मुश्ताक ने बताया कि इसने मुझे पाला है, लिहाजा एहतराम में माँ कहता हूँ, और ये माँ नहीं बल्कि मेरी मुलाजमा है। इसका नाम सफिया बीबी था। वो एक दिन खाना पका रही थी कि दुपट्टे में आग लग गई। मेरे सिवा कोई न था। मैंने दौड़कर जलती आग को हाथों से मसल कर आग बुझाई, जिससे मेरे हाथ जल गए, मगर अम्मा सफिया जल मरने से बच गई। ताहम कमीज के एक हिस्से को आग ने कंधे के पास राख कर दिया और बदन पर उबले पड़ गए। अम्मा सफिया की मैंने अच्छी तरह से देखभाल की। उनके जख्म जल भर गए। मेरे एहसास परवाह बेहद मशकूर हुई। अब मैं इनको मुलाजमा नहीं अम्मा सफिया कहकर बुलाती थी, और वो भी मुझे माँ की तरह चाहती थी। शादी के 2 माह बाद मुश्ताक के पास कुछ लोग कराची से मेहमान बनकर आए, तो उनको देखकर न सिर्फ ये बेहद परेशान हो गई। मैं समझी कि माँ के जख्म अभी तकलीफ करते हैं। वो खाने पकाने से परेशान हो रही थी। तब मैं किचन में खुद मेहमानों का खाना तैयार करने में इनकी भरपूर मदद करने लगी। ये बात सही है कि मुश्ताक मेरा बहुत ख्याल रखता था। वो नहीं चाहता था कि मैं घर के किसी काम को हाथ लगाऊं। अच्छा खाना और आराम मुझे मैसर था। तभी मैं पहले से ज्यादा खूबसूरत हो गई। रंग रूप था कि निखरता जाता था। एक रोज मुश्ताक ने कहा, तुम अपनी खाला के लिए उदास हो गई होगी, चलो तुमको मिला लाता हूँ। मैं मुल्तान जाने को तैयार हो गई। मेरा जी भी उदास था, क्योंकि ना होता कि खाला सबाहत ने तो मुझको माँ बनकर पाला था। जब मैं जाने को तैयार होने लगी तो अम्मा सफिया बहुत ज्यादा परेशान हो गई, जैसे कि मुझे किसी मुसीबत के मुंह में जाते देख रही हो। कई बार मेरे करीब आए, कुछ कहने को मुंह खोला, लेकिन इस पर मुश्ताक का खौफ गालिब था। बिलाखिर मौका मिल ही गया। मैंने किचन में जाकर इनसे कसम देकर पूछा, अम्मा सच बताओ, क्या बात है? कुछ ऐसा मामला जरूर है जो तुम कहना भी चाह रही हो और कह भी नहीं पा रही, और यकीन रखो कि मैं किसी से कुछ ना कहूंगी। तो वो डरते डरते बोली, ये शख्स जो तुम्हारा नहात शोहर बना हुआ है, ये औरतों का दलाल है, गरीब है और सहारा लड़कियों को ऐसे ही फंसाता है और फिर इनका सौदा करके इनको बेच देता है। तुम ट्रेन में इसके साथ ही जाओ, फिर कहीं और चली जाना, बस, और ज्यादा मैं नहीं बता सकती। ये सुनकर मेरा सौदा हो गया है और अब मैं खरीदारों के हवाले होने को ले जाई जा रही हूँ। पैरों तले जमीन निकल गई। मैं चुपचाप इसके साथ चली गई। वो मुझे वेटिंग रूम में बिठाकर खुद टिकट लेने चला गया, क्योंकि रेलगाड़ी के आने में कुछ वक्त था। मैं परेशान बैठी कि एक उम्र रसीदा मुसाफिर खतून जो किसी अच्छे घराने की लगती थी मुझसे पूछने लगी, क्यों परेशान हो, कहाँ जा रही हो? इस वक्त वेटिंग रूम में उसके और मेरे सिवा कोई ना था। मैंने हिम्मत करके अपने हवाले से आगाह करके मदद की दुआस की। उसके बैग में बुर्का था। उसने कहा, मेरी बेटी ने फरमाइश की थी कि इसने खरीदा है, तुम पहन लो। अभी मेरे साथ स्टेशन से बाहर निकलो, वरना तुम्हारे बचाव का इसके सिवा कोई दूसरा हल नहीं है। इसने मेरी खातिर अपना सफर मलतुआ कर दी। इसने मेरी खातिर अपना सफर कैंसिल कर दिया। मैंने औरत की हदायत के मुताबिक अमल किया और हम दोनों स्टेशन से बाहर आ गई। औरतों ने टैक्सी ली और मुझे अपने ठिकाने पर ले आए। यहाँ आकर मालूम हुआ कि वो औरत भी सही नहीं है और इसकी 2 बेटियां हैं जो स्टेज ड्रामों में काम करती है। वो आसमान से गिरा
खजूर में अटका। लेकिन मेरा ख्याल गलत साबित हुआ। इसका ताल्लुक स्टेज ड्रामों से जरूर था, मगर वो औरत पूरी नहीं थी। इसने मेरी खाला का नंबर मांगा। मैंने पड़ोसन का नंबर दिया था। उन्होंने फोन किया के बताया कि खाला को अचानक दिल का दौरा पड़ गया है और कल रात इनका इंतकाल हो गया है। तुम्हारे शोहर को फोन करते रहे, मगर इनका फोन बंद मिला। पड़ोसन की बात सुनकर मैं रोने लगी। खूब जी भर कर रोले तो सितारा खानम ने कहा, बेटी अब तुम्हारी क्या मर्जी है, कहाँ जाना चाहती हो? जहाँ कहती हो तुमको पहुंचा आती हूँ। मैंने जवाब दिया, मैं क्या बताऊं, इस दुनिया में अब आपके सिवा मेरा कोई नहीं। अच्छा, तो फिर मेरे पास रह जाओ, मेरी 2 बेटियां हैं, तीसरी तुम हो गई। सितारा खानम का इलाक इतना अच्छा था कि मैं उनकी बेटी बनकर इनके घर में रहने लगी। पहले तो कहीं आती ना थी, ये बेटियों के साथ स्टेज ड्रामों में परफॉर्म करने चली जाती थी, जबकि मैं इनका खाना पकाती थी और घर का काम कर देती थी। रफ्ता रफ्ता इनके मुशागिल में दिलचस्पी लेने लगी और साथ जाने लगी। एक रोज एक फिल्म प्रोड्यूसर की नजर मुझ पर पड़ गई, तो उन्होंने खानम से इसरार किया कि लड़की को फिल्म में काम करने दो, ये बहुत मशहूर फिल्म स्टार बनेगी। ये अगर खुद चाहेगी तो रोकोगी नहीं, अगर नहीं चाहेगी तो इसे काम के लिए जबरदस्ती नहीं बोलूंगी। ये एक शरीफ घराने की बच्ची है और मेरी पनाह में है। मैं इसके लिए किसी अच्छे घराने का रिश्ता तलाश कर रही हूँ, ताकि अपने घर की हो जाए और इज्जत की जिंदगी गुजारे। फिल्म प्रोड्यूसर गोया के मायूस हुआ, मगर इसके दिल को खानम की बात लगी। इसने कोशिश करके मेरा रिश्ता तलाश किया तो खाला को बताया और मेरी शादी एक शरीफ घराने में हो गई। ये बहुत अच्छे लोग थे, उन्होंने मेरी कदर की। शोहर का एक छोटा सा जनरल स्टोर था और गुजारा ठीक हो रहा था। सास और ननद के अलावा 2 छोटे देवर थे जो पढ़ रहे थे। शाम को मेरे शोहर के साथ जनरल स्टोर पर इनके हाथ बटाते थे और मेरी मेहनती थी। जल्द ही कारोबार में तरक्की की। कुछ जमीन देहात में थी। गांव के लोगों ने वरासत के कागजात निकलवाए तो मेरे शोहर के बहन भाइयों के नाम जमीन निकली जो इनको मिल गई। इसको बेचकर उन्होंने रुपया कारोबार में डाला और दुकान बड़ी कर ली। अब दौलत भी घर में आने लगी। मैं अपने शोहर के साथ खुशो हरम आबाद हो गई। अल्लाह ने गोया मेरी सुन ली थी। साल बड़े सुकून से बसर किए, लेकिन खुदा को कुछ और ही मंजूर था। एक रोज मेरे शोहर दुकान का माल लेने कराची गए तो फसादात का शिकार हो गए और मेरे नसीब एक बार फिर से स्याह हो गए। चंद दिन ससुराल वालों ने रखा, फिर इनका सलूक मेरे लिए बहुत खराब हो गया। मेरी सास ने कहा, मेरी नहूसत से इनके घर में तबाही आई है। इनका रवैया न काबिल बर्दाश्त हो गया। तो मैंने सितारा खानम को फोन कर दिया। वो मुझे अपने पास ले आई। वो फिल्म प्रोड्यूसर अभी इनके घर आता था। इनकी बेटियां इसकी साथ फिल्मों में छोटे मोटे रोल करने लगी थी। इसने जब मुझे देखा तो फिर से फिल्म में काम करने की ऑफर की। इस पर कहने पर हाला ने भी कहा कि तुम किस्मत आजमाई करो। वो साहब बार बार इसरार कर रहे हैं, क्या खबर तुम पर दौलत और शोहरत का दौरा हो जाए, वो मेरे भी दिन फिर जाए। मेरा भी कोई न था जिसका पालन करती। मैंने खानम और प्रोड्यूसर साहब का कहा मान लिया। शुरू में 1-2 छोटे रोल दिए। जब मैंने खुशोसलूबी से निभाए तो उन्होंने कहा एक फिल्म में साइड हीरो का रोल दिलवा दिया। फिल्म बेहद कामयाब रही। इसके बाद तो फिल्मों का ताना बंद ही ना होता था। खानम की सरपरस्ती में चंद फिल्में की जो हिट हो गई और मैं एक नामूर अदाकार बन गई। शायद कुदरत को यही मंजूर था। दौलत अब मेरे घर की बांदी थी और शोहरत मेरे कदम चूम रही थी। मेरी दौलत का कुल मुख्तार मेरी सरपरस्त खानम बन गई। बल्कि मैंने इनको बनाया फिल्मों में काम करना भी।
میں نے ان کی خاطر منظور کیا تھا کیونکہ ان کو خواہش تھی کہ ان کی لڑکیاں فلم سٹار بنے، لیکن میں ایک یتیم بچی تھی اور شرمیلی تھی۔ لڑکی مشہور ایکٹریس اور ٹاپ ہیروئن بن گئی۔ جب کسی فلم کا موضوع ملتا خانم کو دے دیتی اور اپنی مرضی سے خرچ کرتی۔ انہوں نے میرے لیے گاڑی لی اور ایک عالیشان گھر خریدا، میری قدر کی، دل سے میری مدد کی، تو میں نے بھی دل سے ان کے ساتھ پیار کیا، ان کو ماں کا درجہ دیا کیونکہ ان کا اپنا من خوبصورت تھا۔ جب تک وہ زندہ رہی میرا خیال ایک ماں کی طرح رکھتی رہی۔ ان کے انتقال کے بعد مجھ کو محسوس ہوا کہ میں پھر سے اس دنیا میں اکیلی ہو گئی۔ اب میں سمجھدار اور تجربہ کار تھی اور دنیا کو جان پہچان گئی تھی، اچھے برے کی تمیز ہو چکی تھی۔ میری زندگی میں ایک شخص آیا جو مجھ سے غرض پیار کرتا تھا۔ میں نے بطور جیون ساتھی اس کو منتخب کر لیا اور فلم لائن کو حیدرآباد کہہ کر اپنا گھر بسا لیا۔ کچھ عرصے بعد ہم بیرون ملک شفٹ ہو گئے جہاں ان کی آمدنی اچھی ہے اور ہم پرسکون اور خوش و خرم زندگی اپنے بچوں کے ساتھ بسر کر رہے ہیں۔ آج اپنی زندگی پر شکر کرتی ہوں اور سوچتی ہوں کہ جب چاہے جہاں چاہے پہنچا دے، انسان کے بے بس میں کچھ نہیں۔ تو دوستو، کیسی لگی آپ کو یہ کہانی؟ اور اب اس کہانی سے اخلاقی سبق کیا ملتا ہے؟ ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے۔ سٹوری اچھی لگی ہے تو سٹوری کو اپنے دوستوں کے ساتھ واٹس ایپ اور فیس بک وغیرہ پر شیئر ضرور کیجیے گا۔ نیچے شیئر کا آپشن موجود ہے۔ تھینک یو۔